Today's poem Fire and Ice by Robert Frost. Welcome back to the online classes, dear scholars. Today's video we will be seeing the second poem Fire and Ice of Robert Frost. We have seen about the poet. He's an American poet. He was born in San Francisco on March 26, 1874, and for his collection New Hampshire he was given Pulitzer Prize also. After seeing the poem Dust of Snow, here we are with the poem Fire and Ice. Introduction of the poem. Here fire means burning desire and ice means the coldness, that is the hatred in human hearts. The poet wants to conclude what? How will the world end? Whether it will end because of the desire or whether it will end because of the hatred. So poet is not sure how will the world end, but he is just guessing. How can it end? Central idea or the theme of the poem. The theme of the poem is the old age question. What is the old age question? The old age question that whether the world will end in fire or ice. That is what. So after the introduction, we are on the central idea of the poem. Central idea means the theme of the poem. Here the theme, many people think that the world is going to end. And the prediction is that the world will end in 2020, as you all might be knowing the predictions. But here the poet is not discussing when the world will end. He is discussing how will it end. So the poet has a common belief that everything which is existing has an end. Similarly, this world also has an end. One day, this mankind is going to end. And he believes that because so much desire is there, desire to learn, desire to flourish, desire to earn money, the world is going to end because of this desire only. Okay, the fire is the symbol of desire. Again, but poet says, if the world has to end twice, then ice will also be sufficient because there's enough of hatred in this world. So world can end in ice also. It can get cold because of the hatred. We say cold hearted means hatred. So it can end in ice also. Now this is the very short poem Fire and Ice. This is your poem. Now let us see the poem. This poem will end in fire. Some say in ice. So first one is fire. First one is fire. Second one is ice. From what I have tasted of desire. Now fire goes with desire. Fire, desire. I hold with those who favor fire. तो पोएट किसका सपोर्ट कर रहे हैं? उनका दो फायर को सपोर्ट कर रहे हैं. जो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? फायर को. तो राइम स्कीम देखिए. फायर, डिजायर, फायर. आइस, टॉयज, हेट, आइस, सफाइस. ठीक है. अभी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर राइमिंग स्कीम पे आते हैं. सो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन ये है कि कुछ लोग कहते हैं वर्ल्ड फायर में एंड होगा, कुछ लोग कहते हैं आइज में. हिंदी ट्रांसलेशन नहीं देखते, हमें एक्सप्लेनेशन देखना है. तो सिर्फ शब्दों पे ना जाए, एक पोएट की तरह सोचें. क्या है यहाँ पे? ये फायर नहीं कि आग लग जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी. कुछ लोग ये भी कॉन्सेप्ट देते हैं कि क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से पूरी दुनिया क्या होगी? आग लग जाएगी और ख़त्म हो जाएगी. तो दैट इज़ साइंटिफिक, दैट्स साइंस. हम जो है वो यहाँ पे पोएट और लिटरेचर पढ़ रहे हैं स्पेशली. तो हमारा जो यहाँ पे है कॉन्सेप्ट फायर है वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग नहीं, वो डिज़ायर है, ह्यूमन डिज़ायर. आपने सुना होगा कोई एंड नहीं होता ह्यूमन डिज़ायर का. तो ह्यूमन डिज़ायर है. तो कहते हैं कि मैंने जहाँ तक देखा है ह्यूमंस को इतना ज़्यादा डिज़ायर है कि मैं किसका सपोर्ट कर रहा हूँ? फायर का. बट कह रहे इफ इट हैड टू पेरिश टॉयज, लेकिन अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म होना है तो कहने में इतना हेट्रेड भी देखा है मैंने, इतनी नफरत भी है लोगों के मनों में कि वर्ल्ड कैन गेट डिस्ट्रक्टेड इन आइज ऑल्सो. To say that destruction of ice is also great and would suffice. अब यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग और ये सब नहीं है. क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दुनिया कैसे चल रही है, मैनकाइंड, और जैसे भी चल रही है इट इज़ नॉट करेक्ट. जैसे भी चल रही है इट्स नॉट करेक्ट.
क्यों? चाहे वो डिज़ायर हो और चाहे वो क्या हो, हेट्रेड हो, दोनों ही क्या हैं, गलत हैं। दोनों ही क्या हैं, गलत हैं। लेट्स टेक रेड पेन फॉर गलत, दोनों ही गलत हैं। तो इस तरह से अगर डिज़ायर बढ़ता रहा या हेट्रेड बढ़ता रहा तो ये दुनिया के ख़त्म होने का रीज़न बन जाएगा। मीनिंग्स देख लीजिए, सफाइज मतलब सफिशेंट, मीनिंग ऑफ कोर्स हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे है। इरेज ऑल कर देते हैं इसको और पेन को बंद कर देते हैं और अब आते हैं मीनिंग पे। सम मतलब सम पीपल, एंड इन फायर मतलब फायरबॉल, आइज मतलब बर्फ, पता ही आपको। पेरिश मतलब डिस्ट्रॉय, सफाइज मीन्स इनफ और सफिशिएंट, होल्ड विद, स्टैंड विद, पेरिश, डिस्ट्रॉय। मीनिंग बहुत ईजी है, पोएम में कोई ऐसा वर्ड यूज ही नहीं हुआ है जो डिफिकल्ट हो। ठीक है, अब आते हैं समरी। समरी क्या है? फायर एंड आइज एक सिंबॉलिक पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा है। सिंबल क्या है? फायर सिंबल है डिज़ायर का, ये बताता है कि, और आइज क्या है? सिंबल हेट्रेड का। ये कह रहा है कि मिसडीड्स जो हैं, ह्यूमन मिसडीड्स हैं, जो ह्यूमन गलतियां कर रहा है, उसकी वजह से आज नहीं तो कल दुनिया क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। अब राइम स्कीम, A B C B। आपके सामने पोएम अगर ओपन है तो देख लीजिए राइम स्कीम, अगर नहीं ओपन है तो ये बहुत गलत बात है। पोएम अपने सामने ओपन करके ही पढ़ा करिए। मेटाफर, फायर और आइस किससे कंपेयर किए गए हैं? डिज़ायर और हेट्रेड से। एंटीथेसिस, यहाँ पे दो उल्टी चीज़ें एक साथ यूज़ हुई हैं, एंटी ऑपोजिट, फायर और आइस। सिंबॉलिज्म आप देख ही रहे हैं, फायर और आइस है। ये आपके क्वेश्चन आंसर्स, ये है आंसर भी दिया लॉन्ग आंसर का। ये है हमारा थॉट, सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु आर गोइंग टू लिफ्ट यू हायर। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको हौसला दें, ऊपर उठाएं, ना कि वो जो नीचे झुकाएं। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसे तो इट्स वेरी इजी। व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट एंडिंग द वर्ल्ड? पीपल थिंक that either the world will end in fire or ice. What's poet's opinion? Poet का opinion है fire मतलब desire. What does desire mean here? जो भी human needs है, जो भी human इतना ज़्यादा चीज़ें क्या है करता है, सोचता है, जो हर चीज़ को अपना possess करना चाहता है, that is what is wrong with human beings. Poet और poem Fire and Ice written by Robert Frost. As easy as that, the shortest poem you have ever read in your lifetime. अब KG sections में I don't know, but first के बाद से तो ये shortest ही रही होंगी, ये और Fire and Ice दोनों, Dust of Snow, Fire and Ice. So that's all for this poem, of course. That's all. Thank you. Have a good day. And see, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा गुड डे से पहले कि पोएम इजी है, चैप्टर इजी है, जो भी एनसीईआरटी का सिलेबस है इजी है, पर आप आंसर फ्रेम कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, मार्क्स सिर्फ उस पे मिलते हैं। जैसे कि अगर हम ये क्वेश्चन देख लें, देयर आर मेनी आइडियाज़ हाउ वर्ल्ड विल एंड, तो अब ये आंसर लिखने का एक बार स्टाइल देखिएगा आप एक बार रीड करके, और क्या आपका और ये दोनों मैच होता है? ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आई मेक वन वीडियो जस्ट टू डिस्कस द मार्किंग स्कीम, कैसे हर क्वेश्चन पे मार्क्स अलग अलग जगह डिवाइड होते हैं। तो एकदम ध्यान से आंसर लिखिए। कंटेंट बहुत ज़रूरी है, कंटेंट होना चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए, जो क्वेश्चन पूछा उसका एग्जैक्ट आंसर। आगे पीछे आप कुछ भी लिखिए, डजंट मैटर। और तो और कम से कम लिखिए तो वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कम होंगी, ग्रामर मिस्टेक्स भी कम होंगी। तो हमको क्या चाहिए? कम से कम में एग्जैक्ट आंसर, एक्यूरेसी विद परफेक्शन, एंड आंसर इज योर्स। मार्क्स ऑफ कोर्स विल बी योर्स। Okay, now that's all for this video. Thank you.